हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर which name is the Northern Mountains. The Northern Mountains include the Himalayan and the Karakoram mountain ranges. A series of mountains more or less in a line is called a mountain range. Mountain range क्या होती है? बहुत सारी mountains की जब line, series of mountains जो होती हैं उसको क्या कहते हैं? Mountain range. The Himalaya is the highest mountain range in the world. और सबसे highest mountain range कौन सी है हमारी? The Himalayas. The world Himalayas stand for abode of ice. It is arc-shaped and extends from Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the east. कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये फैले हुए हैं the ranges of Himalayas. And the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, the northern part of West Bengal and the northeastern states lies in the Himalayan region. The Himalaya mountains run in parallel ranges from north to east. The region can be divided into 4 zones. The Great or Upper Himalayas, that is called Himadri range. उसके बाद Middle Himalayas, that is Himachal range, and Lower Himalayas, that is Shivalik range. And उसके अलावा North Eastern Hills, that is ईस्टर्न हिमालयाज. ओके, इसके अलावा सेंट्रल हिमालयाज भी हैं लेकिन ये इंडिया में लाई नहीं करते. नाउ फर्स्ट इज द ग्रेट और अपर हिमालयाज, दैट इज हिमाद्री. The northernmost range of the Himalayas is the highest and called the Great Himalayas. The average height of the mountains in the range is 6000 meters above sea level. कितनी हाइट होती है यहाँ माउंटेन्स की? 6000 meters above sea level. और सबसे हाईएस्ट रेंज है, that's why these are called Great Himalayas. Now here is an interesting fact. The Himalayas are called the youngest mountains in the world because they were formed recently and are growing like you every year and increasing in height. हिमालयाज़ को यंगेस्ट माउंटेन्स भी कहते हैं क्योंकि ये रिसेंटली फॉर्म्ड है. रिसेंटली मतलब कुछ सालों पुरानी है. जैसे बाकी के जो माउंटेन्स हैं वो बहुत पुराने हैं लेकिन हिमालयाज़ उनसे कंपेरेटिवली न्यू वंस हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड यंग माउंटेन्स. जैसे आप डेली ग्रो होते हो, हर साल ग्रो होते हो, ऐसे ही हिमालयाज़ भी हर साल अपनी हाइट में इंक्रीज होते जा रहे हैं. Mount Everest at 8,848 meters is the highest peak in the world. हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी कितनी हाइट है? 8,848 and is situated on Tibet-Nepal border. Karakoram range lies in China, Pakistan and India. Its highest peak is called K2, that is 8,611 meters on the border of Pakistan and China. It is the second highest peak in the world. First Mount Everest and second is Karakoram, that is K2. Kanchenjunga height is 8,586 meter. उसके बाद है धौलागिरी, that is 8,167 meters and Nanda Devi height is 7,816 meters. Are other high peaks of this range. Kanchenjunga is the highest peak in India. और इंडिया में highest peak कौन सी है? Kanchenjunga. Many mountaineers regularly attempt to climb these peaks. Tenzing Norgay of India and Edmund Hillary of New Zealand were the first to climb Mount Everest in 1953. An Indian woman, Bachendri Pal, also climbed on the peak in 1984. These peaks always remain covered with ice. That's why they are called Himadri, क्योंकि हमेशा ये बर्फ के साथ covered रहती हैं. No plants grow and no animals live here. ना ही यहाँ पर कोई vegetation है, ना ही यहाँ पर कोई animal रहता है. Rivers of very large pieces of ice moving very slowly are called glaciers. यहाँ पर क्या है? Glaciers हैं, यानी बर्फ के पहाड़ जो पानी में फ्लोट करते हैं.
Valleys are low-lying areas between mountains or hills. Most of our big river Ganga, Yamuna and Brahmaputra originate from these glaciers. मोस्टली जो हमारी मेजर रिवर हैं, बड़ी रिवर हैं जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय से जो ग्लेशियर्स हैं यानी हिमाद्री रेंज से ही निकलते हैं. These rivers get water from melting ice of the Himalayas all the year. Thus they keep on flowing throughout the year. और इन रिवर को हमेशा पानी मिलता रहता है. हिमालय में जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते रहते हैं, इसीलिए ये जो रिवर्स हैं पूरे सालों साल तक पानी से भरी रहती हैं. नेक्स्ट है लेसर और मिडल हिमालयाज दैट आर कॉल्ड हिमाचल. Average height of this range is 5,000 meters above sea level. Average height क्या है? 5,000 meters. It has many passes at great heights. A narrow way over or through a mountain is called a pass. पास क्या होता है? माउंटेन्स के ऊपर से या बीच में से कोई भी रास्ता जो होता है दैट इज कॉल्ड पास. तो लेसर और मिडल हिमालयाज में ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल पास आप देख सकते हो. दे आर डेंस फॉरेस्ट ऑफ पाइन, सिदार, ओक एंड फर. द वेदर इज कूल एंड प्लेजेंट हेयर इन समर्स. इसीलिए हम हिमाचल में यानी लेसर हिमालयाज में घूमने जाते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट हेयर ड्यूरिंग समर. दे ऑल्सो कम टू वॉच स्नोफॉल इन विंटर. विंटर में यहाँ स्नोफॉल होती है. श्रीनगर, शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, अल्मोड़ा, Nainital and Darjeeling are some beautiful hill stations in this range. Kedarnath and Badrinath also lie in this range. Next is Lower Himalayas or Shivalik range. It is also called the foothills. Okay, it is the lowest range of Himalayas. The average height of this range is about 1250 meters. यानी 1250 मीटर अबव सी लेवल इनकी हाइट होती है. And it gets heavy rainfall during summer, so its slope are covered with thick forest. यहाँ पर रेनफॉल होती है बहुत ज़्यादा समर्स में, इसीलिए स्लोप्स जो हैं लेसर हिमालयाज के वो थिक फॉरेस्ट से कवर्ड होते हैं यानी घने जंगल होते हैं यहाँ. There are many valleys between the middle and lower Himalayas. These valleys are called dunes. यानी जो मिडल और लेसर हिमालयाज हैं उनके बीच में वैलीज, घाटियां भी आती हैं जिनको क्या कहते हैं? दून्स कहते हैं. देहरादून इज वन सच वैली, जिसमें से एक है देहरादून. The land at the foot of the Shivalik range is very fertile. It is called the Tarai region. और ये जो लैंड है यहाँ की लेसर हिमालयाज की, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तराई रीजन. It is the covered with long grass and thick forest of teak, cane, bamboo and sal. It is regarded as storehouse of wood. इसको storehouse of wood भी कहते हैं क्योंकि घने जंगल मिलते हैं और बहुत कीमती लकड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से ही मिलती हैं. Tigers, elephants, panthers, deer and rhinoceros are some animals found here. और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के एनिमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट है द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स. The mountains in the northeast are not very high. Actually, these are a series of hills. They are the Patkai Hills, the Naga Hills and the Lushai Hills. Close to these are the Garo and the Khasi and the Jayanti Hills. They get heavy rainfall in summer. They are covered with lush green forest. और यहाँ पर भी beautiful lush green forest आप देखोगे. समर में यहाँ heavy rainfall होती है, इसी कारण ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं ये green forest से covered हैं. Now importance of Himalayas. हिमालयाज़ की हमारे इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है? हिमालयाज़ जो हैं वो हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं एंड इट गार्ड्स आवर नॉर्दर्न बॉर्डर एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द वेरी कोल्ड एंड ड्राई विंड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया. साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं या ड्राई विंड्स आती हैं, अगर हिमालय नहीं होता तो इंडिया नहीं बच पाता है. ओके, यानी हम इंडियंस को साइबेरिया की ठंडी ड्राई विंड से कौन बचाता है? हिमालय बचाता है. सेकेंड, इट checks rain bearing clouds coming in from the seas. They bring heavy rain all along the northern plain. और अगर बारिश हिमालय नहीं होते तो जो मॉनसून विंड है वो इंडिया को क्रॉस कर जाती. इसीलिए मॉनसून विंड
को रोकना और नॉर्दर्न प्लेन्स पे बारिश कराना, ये किसके कारण पॉसिबल है? हिमालयाज के कारण। They bring heavy rain all along the northern plains, and the Himalayas is a huge store of ice and rain water that feed the rivers all the year round. उसके अलावा जो भी नदियां हैं वो पानी से भरी रहती हैं because of the glaciers in Himalayas. These rivers irrigate the plains and help in generation of hydroelectricity. और जो ये नदियाँ हिमालय से निकलती हैं ये प्लेन्स को फर्टाइल बनाती हैं, वहाँ पर खेतों में सिंचाई होती है इनके द्वारा और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके अलावा द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड एनिमल्स फॉर्म आर नेचुरल वेल्थ एंड द फॉरेस्ट गिव अस वैल्यूएबल वुड फॉर फर्नीचर एंड हब्स। यहाँ पर बहुत वैरायटी के फॉरेस्ट ट्रीज आपको मिलेंगे, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल मिलेंगे जो कि हमारे इंडिया के फ्लोरा एंड फोना को बढ़ाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। लोगों की लाइफ कैसी है यहाँ? The land features influence the life of people at different places. Thus, the lifestyle of people differ from place to place in India. A number of rivers rising from the northern mountains have given rise narrow and fertile valleys. People live in these valleys. Okay, तो valleys में रहते हैं, जैसे मिडल हिमालय, लेसर हिमालय, हाई हिमालयस जो हैं उनके बीच में वैलीज़ हैं, तो वैलीज़ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं जो गांव बसे हुए हैं वो वैलीज़ में हैं। दीज वैलीज़ आर फेमस फॉर देयर ऑर्चर्ड्स विच एल्ड रिच फ्रूट क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर। और ये किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर फ्रूट्स के बगीचे हैं जो सालों साल तक बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। द फार्मर्स कट वाइड स्टेप्स ऑन जेंटल हिल स्लोप एंड दीज स्टेप्स आर यूज्ड एज स्मॉल फील्ड्स एंड कॉल्ड टेरेस फील्ड। और इस तरीके से जो फार्मर्स हैं वो स्टेयर्स टाइप में फील्ड बनाते हैं और इसको क्या कहते हैं? टेरेस फार्मिंग। अब यहाँ से पानी जो है वो फ्लो होना इजी हो जाता है, एक जगह पर पानी खड़ा भी नहीं रहता और हर जगह तक इरिगेशन भी पॉसिबल है। राइस इज मेनली ग्रोन इन सच फील्ड्स। ज़्यादातर टेरेस फील्ड में कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है? राइस। सम पीपल ऑल्सो रियर शीप एंड गोट्स। कुछ लोग जो हैं पहाड़ों पर वो भेड़ बकरियों को भी पालते हैं। सम पीपल आर वेंडर्स एंड सेल गुड्स दैट पीपल नीड। और कुछ लोग वेंडर्स का काम करते हैं, जो पहाड़ पर लोगों को चीज़ें चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। दे यूज़ याक्स एंड म्यूल्स टू कैरी देयर लोड्स। और अपने बोझे को ढोने के लिए वो लोग याक का यूज़ करते हैं या फिर म्यूल्स का यानी खच्चर गधों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। Jammu and Kashmir. The Kashmir Valley is very beautiful. Glittering lakes surrounded by trees and snowy and sunny mountains look like heaven on the earth. कश्मीर इतना सुंदर है कि इतना सुंदर दिखाई देता है कि चमकती हुई जो झील है कश्मीर की चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई है और सनी माउंटेन्स जो पूरा कैसा लुक देता है, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग जो है वो धरती पर आ गया हो। ओके, द फेमस डल लेक इज सिचुएटेड इन श्रीनगर। यहाँ पर श्रीनगर में एक डल लेक है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड मैनी हाउस बोट्स डॉट द लेक इन विच टूरिस्ट स्टे। और बहुत सारी ऐसी हाउस बोट बनी हुई हैं डल लेक में जहाँ पर टूरिस्ट रुकते हैं। और श्रीनगर इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Thousands of tourists visit Kashmir Valley every year. बहुत हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं। एंड द डिवोटीज विजिट द अमरनाथ केव एंड वैष्णो देवी। और जो भक्त हैं वो अमरनाथ गुफा में घूमने आते हैं, विजिट करने आते हैं और वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। गुलमर्ग इज फेमस फॉर इट्स फाइन मिडोज। बोथ मैन एंड वीमेन वियर लूज वूलन शर्ट्स कॉल्ड फिरन। और यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है फिरन, जो कि एक लूज वुलन शर्ट होती है। एंड along with which they wear a loose salwar. In winter they hang kangris under their firans to keep them warm. A kangri is a small cane basket with an earthen fire pot with coals inside. Kashmiri like to drink kahwa, that is green tea. क्या पसंद होती है कश्मीरियों को? कहवा, that is green tea. People in Jammu and Kashmir speak Kashmiri, Ladakhi, Dogri and Urdu. कौन कौन सी भाषा बोलते हैं कश्मीर के लोग? कश्मीरी, लद्दाखी, डोगरी एंड उर्दू। They are also fond of
सिंगिंग्स एंड डांसिंग, इनको गाने का और नृत्य करने का भी बहुत शौक होता है। देयर राउल डांस इज़ वेरी पॉपुलर एंड द फार्मर्स ग्रो राइस इन द वैली और ऑन हिल स्लोप्स। फार्मर के कौन सी फसल की खेती करते हैं? राइस की। दे ऑल्सो ग्रो मैनी फ्रूट्स इन द ऑर्चर्ड्स लाइक pears, peaches, apple, apricots, cherries, walnuts and almonds. Saffron is also grown in some areas, और इतने सारे फ्रूट्स के वहाँ पर बगीचे होते हैं। किसी किसी जगह पर केसर भी ग्रो किया जाता है। A little saffron in any dish gives it color, फ्लेवर एंड टेस्ट। केसर क्या होता है? जिसको आप थोड़ा सा, एक चुटकी भर यानी 2 धागे भी अगर किसी डिश में डालते हो तो उसमें एक अलग कलर और फ्लेवर आ जाता है और टेस्ट उसका बिल्कुल अच्छा हो जाता है। सम पीपल आर ऑल्सो एंगेज्ड इन एनिमल ग्रेजिंग एंड रियरिंग, और कुछ लोग जो हैं वो एनिमल ग्रेजिंग करते हैं यानी पशुओं को चराते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं और उन्हें पालते हैं ताकि उनसे दूध मिल सके और एनिमल प्रोडक्ट मिल सके। दीज पीपल आर गुड क्राफ्टमैन, दे वीवन woolen clothes, pashmina shawls, blankets and carpets. Some of them make wood, brass or papier mache handicraft. और ये लोग जो हैं गुड क्राफ्टमैन होते हैं, अच्छे कारीगर होते हैं, अच्छी बुनाई का ये काम करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट भी बनाते हैं। यहाँ की पश्मीना शॉल जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट स्टेट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। There are mountains, hills, valleys and rivers in हिमाचल प्रदेश. शिमला is its capital, और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? शिमला. It is a popular hill station and कुल्लू मनाली and कुफरी are other beautiful hill stations. ज्वालामुखी टेम्पल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इज़ वेरी फेमस। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक ज्वालामुखी टेम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर सिंपल, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। दे लाइक टू वेयर ब्राइट कलरफुल क्लोथ्स। हिमाचल प्रदेश के जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत ईमानदार होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहनना इनको बहुत पसंद होता है। ये लोग हिंदी और पहाड़ी लैंग्वेजेस बोलते हैं। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग एंड फ्लूट प्लेइंग। बांसुरी बजाना इनका शौक है और नृत्य करना भी इनको बहुत पसंद है। नाटी इज़ ए पॉपुलर फोक डांस। यहाँ का फेमस फोक डांस कौन सा है? लोक नृत्य है नाटी। एंड दे सेलिब्रेट दशहरा, शिवरात्रि एंड दिवाली विद ग्रेट फैनफेयर एंड फन। बहुत उल्लास के साथ ये लोग सेलिब्रेट करते हैं दशहरा, शिवरात्रि और दिवाली को। कुल्लू एंड कांगड़ा वैली आर स्पेशली फेमस फॉर देयर दशहरा सेलिब्रेशन। जैसे कि कुल्लू और कांगड़ा वैली में दशहरा सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो मोस्टली फार्मिंग करते हैं। द फूड क्रॉप्स ग्रोन आर व्हीट, मेज, राइस एंड पोटैटोज। फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स, एप्रिकॉट, प्लम्स, पीचेस एंड ग्रेप्स आर ग्रोन इन प्लेंटी एंड दीज पीपल आर गुड क्राफ्टमैन एंड मेक वुडन टॉयज एंड ट्रेज along with shawls and carpets. Some people rear sheep and goats. और ये लोग भी बहुत अच्छे क्राफ्टमैन हैं। ये लोग लकड़ी के टॉयज बनाते हैं और ब्यूटीफुल शॉल को भी बुनते हैं और कारपेट बनाने का भी काम करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो एनिमल को रियर करते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं। नेक्स्ट है गढ़वाल एंड कुमाऊं, दैट इज उत्तराखंड। Moving from north to east, the middle part of Himalayas lie in the state of Uttarakhand. Locally, this area is called as गढ़वाल और कुमाऊं रीजन। इस रीजन को क्या कहते हैं? गढ़वाल या फिर कुमाऊं रीजन बोलते हैं। उत्तराखंड का जो रीजन है। मसूरी इन गढ़वाल एंड नैनीताल इन कुमाऊं आर फेमस हिल स्टेशन। गढ़वाल का मसूरी और कुमाऊं का नैनीताल बहुत फेमस हिल स्टेशन है। द गंगा, द यमुना एंड मैनी स्मॉल रिवर्स राइज हियर। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ इन द माउंटेन्स आर फेमस प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट इंटरेस्ट। ये जो जगह है यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के लिए और बहुत सारे लोगों के टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी कारण है। ये आप देखो, दिस इज ब्यूटीफुल नैनीताल एंड दिस इज केदारनाथ टेम्पल।
The people of Gadwal and Kumaon like to wear bright, colorful clothes, long shirts and pajamas. They grow rice, wheat, maize and vegetables. Some people also rear sheep and goats. और ये लोग भी क्या पहनते हैं? कलरफुल क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, लॉन्ग शर्ट के साथ पायजामा पहनते हैं और राइस की खेती करते हैं, व्हीट, मेज एंड वेजिटेबल ग्रो करते हैं और कुछ लोग शिप एंड गोट्स को पालते हैं. नेक्स्ट इज सिक्किम. सिक्किम इज अ स्मॉल स्टेट wholly situated in the Himalayas. सिक्किम एक छोटी सी स्टेट है हिमालय की and it lies between Nepal and Bhutan. कंचनजुंगा the highest peak in India is in सिक्किम. जो highest peak है कंचनजुंगा ये कहाँ पर है? सिक्किम में ही है. Okay? It is the third highest peak in the world. Gangtok is the capital of the state. सिक्किम की capital है गैंगटोक. There are many Buddhist monasteries. Bhutis, Lepchas and Nepalese people live in Sikkim. They wear colorful clothes. They wear masks while they dance. जब डांस करते हैं ये तो मास्क एक मुखौटा पहनते हैं. They play music on long bamboo horns. Food of the people is rice, pulses, vegetables and yak milk. फार्मिंग जो है मेन ऑक्यूपेशन है सिक्किम के लोगों का. ऑरेंजेस, एप्पल, कार्डमन, एरिकोनोट्स एंड जिंजर आर द मेजर प्रोडक्ट. यहाँ पर जो ग्रो होते हैं. विविंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर द मेन कॉटेज इंडस्ट्रीज. नाउ नेक्स्ट है दार्जिलिंग. Darjeeling is the hilly area in northern West Bengal. It is the most famous hill station in eastern part of India. Darjeeling hills are known for their high quality tea. Darjeeling जहाँ पर चाय के बागान हैं, high quality tea के लिए Darjeeling बहुत ज़्यादा famous है. कहाँ पर located है? Is the hilly area in northern West Bengal. Okay. Next है the northeastern hilly region. The northeastern hilly region is a part of eastern Himalayas. It is spread over 7 states. These are Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura and Mizoram, जिसको together 7 sisters के नाम से भी जाना जाता है. Most parts of Assam and Tripura lies in the plains. Bamboo and cane are very important in the life of people here. यहाँ पर लोगों के लिए बैम्बू यानी कि बांस और केन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड दीज आर यूज टू मेक fences, houses, stairs in houses and bridges over streams. इतने सारे कामों में ये चीज़ें काम आती हैं, जैसे कि घर की सीढ़ियाँ बनानी हैं या फिर फेंसेस यानी कि घर को प्रोटेक्ट करने के लिए चार दीवारी बनानी है. तो इन चीज़ों के लिए लोग यूज़ करते हैं. एंड दे मेक मैनी मोर आर्टिकल्स फ्रॉम बैम्बू एंड केन. Tribals are very fond of dancing. On special occasions, they wear their traditional dress. जब कोई इनका ट्रेडिशनल त्योहार कुछ आता है, ट्रेडिशनल अवसर आता है, तो ये अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं. The ladies wear long skirts made of colorful striped cloth and they weave their skirts or shawls themselves. और अपनी स्कर्ट के लिए कपड़ा ये खुद बुनते हैं, एक लार्ज स्कर्ट्स पहनते हैं. ओके, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश. The sun rises first here before any other part of India. सबसे पहले जो सनराइज होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है इंडिया के. एंड द स्टेट इज़ क्वाइट बिग विथ थिन पॉपुलेशन. बहुत बड़ी स्टेट है ये, लेकिन पॉपुलेशन कम है. डिफरेंट ट्राइब्स लिव हेयर. यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स आप देखोगे. एंड ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, ड्रेस, डांस एंड लाइफस्टाइल. हर एक ट्राइब का अपना लैंग्वेज है, अपनी ड्रेस है, अपना डांस है और अपनी लाइफस्टाइल है. एंड ईटानगर इज इट्स कैपिटल. इट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लेक एंड ओल्ड फोर्ट हेयर. और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? ईटानगर. ओके, और यहाँ पर बहुत सारे फोर्ट बने हुए हैं एंड ब्यूटीफुल लेक भी है. पीपल आर मोस्टली फार्मर्स. दे ग्रो राइस, मेज, मिलेट्स, तंबाकू एंड ऑयल सीड्स. मिथुन अ वाइल्ड बफेलो इज़ अ मेन डोमेस्टिक एनिमल. और यहाँ पर लोग जो है एक डोमेस्टिक वाइल्ड बफेलो को पालते हैं, दैट इज़ मिथुन, एंड दैट वाज द डोमेस्टिक एनिमल, मेन डोमेस्टिक एनिमल. नाउ नेक्स्ट इज मेघालय.
There are three main tribes in Meghalaya: Garo, Khasi and Jayanti. Each tribe has its own language, dress and lifestyle. यहाँ पर 3 ट्राइब मिलती है मोस्टली, गारो, खासी एंड जयंती. हर एक ट्राइब का अपना अपना ट्रेडिशन है, अपनी लैंग्वेज है और अपनी ड्रेस है, अपना लाइफस्टाइल है. पीपल वहाँ पर बहुत कलरफुल क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, डांस एंड म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं. मोस्टली जो यहाँ पर फार्मर हैं या फिर हंटर्स हैं. देयर फूड इज़ राइस, पोर्क एंड फिश. सम पीपल मेक हैंडीक्राफ्ट और वीव क्लोथ. कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं और कुछ लोग कपड़ा बुनने का काम भी करते हैं. शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट. और मेघालय की कैपिटल कौन सी है? शिलोंग. एंड it is a beautiful hill station and Menswarm in Cherrapunji receives the highest rainfall in the world. और चेरापूंजी में मैनसरम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है वर्ल्ड में. नेक्स्ट इज नागालैंड. नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा. The Nagas have about 16 tribes. They are fond of dance and music. Nagaland यानी नागाज ट्राइब की जो लैंड है दैट इज़ नागालैंड. कितनी ट्राइब्स हैं? मोस्टली यहाँ पर 16 ट्राइब्स हैं नागाज की. ये लोग डांस एंड म्यूज़िक के बहुत शौकीन होते हैं. कलरफुल क्लोथ्स पहनना इनको बहुत पसंद होता है जो शेल्स, बोन्स, इवोरी, feathers and horns के साथ डेकोरेटेड होते हैं. The Nagas are mostly farmers and hunters and they grow rice and maize. Naga women weave very beautiful clothes. Naga women जो हैं वो बहुत सुंदर कपड़े बुनती हैं. Next is मणिपुर. मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल. And Manipuri people wear colorful clothes woven at home. They eat rice, pulses, fish and vegetables. People dance and music के बहुत शौकीन हैं. मणिपुरी डांस जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में. Here is the picture of Manipuri dance. And farming is the main occupation. Farmer grow rice, sugarcane, cotton, tobacco and vegetables. पाइनएप्पल एंड ऑरेंजेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो होता है. देयर आर सम टी गार्डन्स एज वेल. मणिपुर में कुछ चाय के बागान भी हैं. वीमेन आर मोस्टली एंगेज्ड इन स्पिनिंग एंड वीविंग. नेक्स्ट है मिजोरम. मिजोरम की कैपिटल है एजवाल. Aizawl is the capital of Mizoram. Most people belong to Mizo tribe and speak Mizo language. Main food of the people is rice, fish, vegetables and fruits. Mizos are fond of dance and music. जितने भी ट्राइबल पीपल होते हैं ये आप देखोगे सब fond of dance and music होते हैं. ओके. बैम्बू डांस इनका फेमस डांस है. यानी मिजोरम का कौन सा डांस फेमस है? बैम्बू डांस. और कौन सी खेती करते हैं लोग यहाँ पर? झूम फार्मिंग करते हैं, झूम कल्टीवेशन करते हैं. लोग यहाँ पर कपड़े खुद बुनते हैं एंड ब्यूटीफुल आर्टिकल्स बनाते हैं बैम्बू, केन एंड वुड का यूज करके. ओके. नाउ हियर इज द क्लासरूम एक्टिविटी. आपको करेक्ट वर्ड को क्या करना है? टिक करना है. लाइक रीड द फर्स्ट वन. द हिमालयाज इज द स्टोर ऑफ सैंड और आइस. हिमालयाज में सबसे ज्यादा क्या आपको मिलेगा? सैंड मिलेगी या आइस? आइस इज द करेक्ट वन. ओके. इस तरीके से बाकी के 4 आप खुद करोगे. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.